Hello students, in last lecture we study about the common concept like heredity, what is variation, okay, who is Mendel, who gave this genetics, clear, why Mendel choose pea plant. Then today I will start monohybrid experiment or inheritance of one gene. Okay, but before starting of this experiment, first here there are the 7 characters, means the 7 characters we studied by Mendel. In last lecture we studied that Mendel performed 7 years experiments for 7 characters on the pea plant. So which 7 characters are there? So here there are the 7 characters. First character is the height of stem. Second character is the flower color. Third character is the flower position. Fourth character is a pod shape. Fifth character is pod color. Sixth character is seed shape. And last character 7 is seed color. Clear? So here there are the 7 characters, and here the contrasting traits of this character means height of stem. So either tall or dwarf. Second, the flower color either violet or white. Then flower position axial or terminal. What is the meaning of axial flower and what is the meaning of terminal flower? The flower which is developed in the axis, that is known as the axial flower, and at the top मतलब कि जो flower as a axial मतलब ऐसे हमने पढ़ा है ना, that is axis, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इट्स नोन एज एक्सिस. तो यहाँ से जो फ्लावर ग्रो होता है दैट इज एक्सियल पोजीशन, और जो टर्मिनल मतलब जो टॉप पे जो फ्लावर होता है दैट इज टर्मिनल पोजीशन. The position of flower is either axial flower or terminal flower. Then after pod shape, pod means seed. तो seed का जो shape है मतलब pod जो surface होती है pod की, तो pod का जो shape है वो either flat है या फिर constricted है. Inflated का मतलब क्या है, जो फूला हुआ होता है वो, एंड कंस्ट्रिक्टेड मतलब कि जो बहुत ही लाइक कंस्ट्रिक्ट हो गया तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्टेड. तो हियर पोड शेप इज आइदर इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड. देन पोड कलर आइदर ग्रीन और येलो. देन सीड शेप राउंड और रिंकल्ड, एंड सीड कलर दैट इज येलो और ग्रीन. राउंड शेप रिंकल मीन्स कि जिनकी सरफेस रफ होती है उसको रिंकल्ड कहा जाता है, दैट इज रिंकल्ड. ओके, तो हियर आर द 7 कैरेक्टर्स which did studied by the Mendel, but one टाइम पे ओनली one कैरेक्टर को उसने स्टडी किया था फॉर 7 years. क्लियर? तो हियर आर there are 7 characters. Height of the stem tall or dwarf. Flower color violet or white. Flower position axial or terminal. Pod shape inflated or constricted. Pod color green or yellow. Then seed shape round or wrinkled, and seed color either yellow or green. Clear? Okay, now starting of monohybrid experiment. Why it's known as monohybrid experiment or inheritance of one gene? Because by this experiment Mendel study only one character.
So because of this reason, mono means one. The experiment is known as monohybrid experiment. Why it's known as monohybrid experiment? Because Mendel studied only one character in this experiment, so it's known as monohybrid experiments. That's why we known as this monohybrid experiment. Clear? Okay. Now first let's take the example of hybridization experiment. फर्स्ट सबसे पहले इन एक्सपेरिमेंट में क्या किया था वो पढ़ते हैं. मेंडल क्रॉस्ड two plants for one character, and the character is height of stem. Okay, so first he crossed between two plants. First is the tall plant and second is the dwarf plant. Dwarf means short. Clear? So first he crossed two plants, tall and dwarf. So here tall and dwarf plant we consider as a parent plant. So tall and dwarf plants are taken. Now crossing between these two tall and dwarf plant, we get some seeds, and then after we grew them, or Mendel grew them. Why? Because for getting the plants in F1 generation, crossing between this tall and dwarf plant, we get seeds, and then the seeds grew. Why? Because we getting the plants for why? For the study in F1 generation. Means मेंडल ने टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट को कलेक्ट किया, दोनों में क्रॉसिंग करवाया, और क्रॉसिंग क्यों करवाया? क्रॉसिंग की वजह से हमें जो सीड मिले, उस जो सीड है वो सीड को मेंडल ने ग्रू करवाया, और फिर उसमें से जो प्लांट्स फॉर्म हुए वो प्लांट्स कौन सी जनरेशन में आते हैं? F1 जनरेशन में, F1 प्रोजेनी. क्लियर? तो फर्स्ट एज अ पेरेंट Mendel take or Mendel cross between two plants, tall and dwarf plant. Then after he collect the seeds, and then they grew the seeds for the collection of plants for F1 generation. Clear? And here the F1 progeny, also known as filial generation or also known as first generation. So in F1 progeny, Mendel observed all the plants were tall. Means here the F1 progeny resembles only one parent's character, not two, only one character. Means F1 जनरेशन में, F1 प्रोजेनी में हमें जो भी कैरेक्टर्स मिले प्लांट्स में, वो दोनों में से कोई एक पेरेंट से ही मिलता है, मतलब एक पेरेंट के जैसे ही है, दोनों के जैसा कैरेक्टर उसमें नहीं दिखता है. मीन्स F1 प्रोजेनी में सारे टॉल प्लांट मिले, और हम देख सकते हैं कि पेरेंट में टॉल है एंड ड्वार्फ है, तो हमें F1 में जो मिले वो दोनों में से कोई एक पेरेंट का ही सिमिलर है. क्लियर? तो in F1 progeny, Mendel collected the results, or Mendel collected the plants or observed the plants which were tall and which resembles only one parent. None of the plant is dwarf. कोई भी प्लांट जो है वो उनको ड्वार्फ नहीं मिला, सारे प्लांट्स उनको टॉल ही मिले. Clear? Okay. Then after the self fertilization of F1 progeny,
Mendel performed on F1 progeny. He made the self-fertilization of F1 progeny for getting F2 generation, and in F2 generation he surprised to found that there are two characters were observed, tall and dwarf. Even dwarf one is not seen on F1 progeny. Here Mendel ने क्या किया कि F1 प्रोजेनी में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो करवाया उसने तो किसके लिए करवाया, फॉर गेटिंग F2 जनरेशन, तो उसके थ्रू उसको F2 जनरेशन मिली। और सरप्राइज की बात यह है कि F2 जनरेशन में उसको दोनों कैरेक्टर देखने को मिले, टॉल एंड ड्वार्फ। क्लियर, दोनों कैरेक्टर्स टॉल एंड ड्वार्फ दोनों उसको देखने को मिले। हालांकि F1 जनरेशन में ड्वार्फ तो मिला ही नहीं है, फिर भी F2 में हमें टॉल भी मिले एंड ड्वार्फ प्लांट भी मिले। मतलब मेंडल कंक्लूडेड दैट on the observation of F2 generation, here F2 generation resembles to their parents in both characters, but in F1 generation resembles only one parents. Clear? So here that is the monohybrid experiment. What happened? First one, Mendel crossed two plants. One is tall, another is dwarf plant. Then by fertilization or by crossing of this tall and dwarf plant, Mendel collected the seeds and he grew the seeds for getting plants. And in F1 generation he observed all the plants were tall. Means F1 progeny resembles only one character of their parents. None of the plant were dwarf. कोई भी plant dwarf नहीं मिला था. Then after here he carried out the self fertilization of F1 progeny and he observed or he surprisingly found that in F2 generation there were two characters are present. Tall and dwarf plant resembles 100% that of their parents, even though there is no dwarf plant present in F1 generation. Clear? So here that is the experiments of Mendel or monohybrid experiment. Clear? Here in F2 generation, tall and dwarf plants in ratio of 3:1, 3 by 4th, 1 by 4th. 3 by 4th were tall and 1 by 4th were dwarf. Means जितने भी F2 में हमें प्लांट्स मिले उसमें से 3 जो प्लांट्स थे वो टॉल थे एंड 1 प्लांट जो था वो ड्वार्फ था। क्लियर? So it's all about the monohybrid experiments. Clear? Then Mendel concluded that from this experiment F1 progeny resembles only one character of their parents and F2 generation resembles both characters of their parents. And in F1 and F2 means in both generation there is no blending of character. Blending means mixture. कोई भी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर नहीं मिला है। इंटरमीडिएट मतलब कि मीडियम साइज का प्लांट, टॉल भी नहीं है ड्वार्फ भी नहीं है, लेकिन दोनों का मिक्सचर, दैट मीन्स मीडियम। देन he said that in F1 and F2 generation there is no blending characters were observed or there is no intermediate characters were seen. All are either tall or dwarf, means
F1 F2 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर्स थे वो उसके पेरेंट के जैसे ही थे, कोई भी नया कैरेक्टर देखने को नहीं मिला। क्लियर? It's all about the Mendel's experiment, and from this experiments he generally conclude what? That some material or substance अनचेंज फॉर्म में वन जनरेशन में से दूसरी जनरेशन में कंटिन्यूअसली पास होता है इन स्टेबल फॉर्म, मीन्स अनचेंज फॉर्म में। समझ में आ रहा है? जो भी मतलब कि वो क्या कह रहा है कि अगर पेरेंट में टॉल और ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हमें उसकी F1 प्रोजेनी में टॉल कैरेक्टर्स मिला, F2 में भी हमें टॉल एंड ड्वार्फ दोनों कैरेक्टर मिले। मतलब कि ऐसा कोई सब्सटेंस, कोई मटेरियल है जो पेरेंट्स में से उसकी नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहा है, जिसकी वजह से उनके जो कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स पेरेंट के जैसे मिलते हैं। क्लियर? तो मेंडल्स concluded that there is some material or some samples were passed on continuously in unchanged or in stable form from parent to offsprings continuously through generation to generation। मतलब कि सारी जनरेशन में से पेरेंट्स में से उसकी नेक्स्ट जो जनरेशन में उसमें कोई मटेरियल पास होता है कि जिसकी वजह से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें उसके पेरेंट के जैसे देखने को मिलता है। एंड मेंडल कॉल्ड देम फैक्टर्स एंड टुडे वी कॉल्ड देम जीन्स। मतलब कि मेंडल ने वो मटेरियल का नाम क्या दिया था? फैक्टर्स। टुडे हम उसको क्या बोलते हैं? जीन्स। क्लियर? समझ में आया? ओके, तो हियर द जीन्स carries the information for the characteristics of parents। मतलब कि पेरेंट के जो भी कैरेक्टर्स है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो किस में होती है? जीन्स में। दैट्स व्हाई जीन्स आर नोन एज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हियर जीन्स नोन एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। Clear? So here what is factors? Some material which was passed on from parents to their offsprings in unchanged form or in stable form continuously from generation to generation, and Mendel called them factors. Today we call them genes. And in short, genes contain the information about the characteristics of parents. So, genes are known as a unit of inheritance. That's monohybrid experiments. Clear? Now, we study about some fundamental definitions. अगर आपको मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके या फिर कॉल करके पूछ सकते हो। नोट्स आपको मिल जाएगी। वो नोट्स में से आपको फेयर बुक में एक बार लिखना है और रफ बुक में 2 बार लिखना है। ठीक है? साथ में सारे के सारे थियोरी साथ में लर्न भी करनी है आपको। ओके? और कोई भी क्वेरी है तो तुरंत ही पूछ सकते हो। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज होमोजाइगस, व्हाट इज हेट्रोजाइगस, व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रिसेसिव? These two are the types of genes. First one, what is homozygous? Second one, what is heterozygous? According to its name, homo means same.
Hetero means different. First we take some symbols of genes. Clear? देखो यहाँ suppose for tall plant capital T genetic structure or gametes are there. For dwarf plant we take small t. Actually these two are known as contrasting traits. जो आगे हमने लिखा था ना, आइदर टॉल है या फिर ड्वार्फ है, वायलेट है या फिर वाइट है, तो ये जो दोनों है ना उसको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बोलते हैं. एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेट्स है. मतलब उसका मतलब क्या होता है कि एक ही जीन की डिफरेंट इफेक्ट. जीन एक ही है, किसके लिए है? तो स्टेम की हाइट के लिए है, लेकिन एक ही जीन की दो डिफर इफेक्ट देखने को मिलती है. जैसे कि एक है टॉल, दूसरी है ड्वार्फ. एक है वायलेट तो दूसरी है वाइट. समझ में आ रहा है? तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. क्लियर? तो ऐसे याद रखो, जैसे कि हमने ये सिंबल लिया है, जैसे कि टॉल प्लांट के लिए हम कैपिटल टी लेते हैं और ड्वार्फ प्लांट के लिए हम स्मॉल टी. ऐसा नहीं होता है कि ड्वार्फ का फर्स्ट लेटर डी है तो हम ड्वार्फ के लिए डी ले लें और टॉल के लिए टी. अगर आप टी और डी लेते हो तो आपको समझने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा. इसीलिए जो कैपिटल लेटर लिया जाता है उसका ही स्मॉल लेटर हम चूज करते हैं. हमेशा ऐसा ही करना है. कोई ऐसा नहीं करना है कि टॉल का टी लेना है और ड्वार्फ का डी लेना है. ऐसा कभी भी नहीं करना है. टॉल प्लांट्स का जो भी आप ले रहे हो कैपिटल लेटर, उसका ही स्मॉल लेटर आपको चूज करना है फॉर उसके जो कॉन्ट्रास्ट में जो भी है उसके लिए. मतलब कि टॉल के लिए कैपिटल है तो फिर ड्वार्फ के लिए हमें क्या चूज करना है? स्मॉल टी. नेवर यूज दिस लाइक कैपिटल टी एंड स्मॉल डी. क्लियर? फॉर इजी पर्पज. इजी मतलब कि वो इजी गोइंग हो जाएगा. अगर आप टी और डी दोनों कैसे याद रखोगे? इसकी वजह से हम हमेशा ही क्या लेते हैं? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. या फिर कैपिटल आर ले रहे हो तो फिर उसके सामने लेना है स्मॉल आर. जो भी आप कैपिटल लेटर लेते हो उसका ऑपोजिट उसके हमें उसका स्मॉल लेटर ही लेना है. क्लियर? ओके. नाउ अब हम सिंबॉलिक फॉर्म से वो एक्सपेरिमेंट समझ रहे हैं. First one here the tall plant and capital T and dwarf plant, that is small t. Clear? Now parent में हमने लिया था tall plant and dwarf plant. The crossing between this tall and dwarf plant, here is the capital T, small t. All the gametes are of T types and all the gametes are of small t types. So here these are the gametes. Then the fusion of this, in F1 generation all the plants are tall. Here that is F1 generation. Here capital T is present and small t is present. Then why we know as tall plant? क्यों फिर भी हम उसको tall plant कहते हैं? दोनों के जीन्स अवेलेबल हैं. कैपिटल T tall का, स्मॉल t dwarf का. तो फिर क्यों हमने ऐसा कहा कि ये सारे टॉल है? स्मॉल टी प्रेजेंट होने की वजह से भी. ओके. तो ये सबके आंसर ये डेफिनेशन के थ्रू हम समझ रहे हैं. फर्स्ट वन, व्हाट इज होमोजाइगस कंडीशन? होमो मतलब कि सेम, जाइगस मीन्स की पैर. जो पैर में होते हैं लेकिन सेम गैमेट्स होते हैं उसको हम होमोजाइगस बोलते हैं. जैसे कि कैपिटल टी बोथ आर सेम, then it's known as homozygous. Small t both are same, then also known as homozygous. But in case of this condition, one is capital T and another is small t. So here the capital T small t generally known as the hetero. Hetero means different. एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है, मतलब दोनों डिफरेंट हो गए. तो ये दोनों डिफरेंट है, उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं? उसको हेट्रोजाइगस कंडीशन. क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस कंडीशन. तो here that is a heterozygous. Clear? What is the meaning of homozygous? Homozygous means if both gametes are same
in pair, then it's known as homozygous. And if both are different, one is capital and another is small, then it's known as the heterozygous condition. याद कैसे रखोगे? होमो का मतलब होता है सेम, सो जो भी गैमेट सेम है उसको हम होमोजाइगस बोलते हैं। एंड हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, मतलब कि जो भी गैमेट्स डिफर होते हैं, वन इज कैपिटल टी अनदर इज स्मॉल टी, देन इट्स नोन एज हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्लियर? पक्का? ओके। नाउ व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रिसेसिव? डोमिनेंट एंड रिसेसिव का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पूछा कि कैपिटल टी है एंड स्मॉल टी है, एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, फिर भी हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि सारे प्लांट्स जो है F1 के वो टॉल प्लांट्स हैं? क्यों? सुनना, एक कैपिटल टी है वो किसके लिए है? टॉल कैरेक्टर के लिए। स्मॉल टी है वो किसके लिए है? ड्वार्फ के लिए। लेकिन इफेक्ट किसकी आई? टॉल की, मतलब जो कैपिटल है वो उसकी। तो इफ देर आर टू डिफरेंट एलेल्स और टू डिफरेंट जीन्स, जीन्स के लिए हम अनदर वर्ड यूज कर रहे हैं एलेल्स, एलेल्स का मतलब होता है कि जीन्स। ओके, इफ टू डिफरेंट एलेल्स आर प्रेजेंट, मतलब कि टू डिफरेंट एलेल्स, वन इज कैपिटल टी एंड अनदर इज स्मॉल टी, देन one represents itself and another remain constant or remain stable in presence of one। मतलब कि जो दो डिफरेंट एलेल्स प्रेजेंट होते हैं तब एक एलेल खुद को एक्सप्रेस करता है और दूसरा जो है वो उसकी प्रेजेंस में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। गॉट इट? मीन्स एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है। कैपिटल टी जो है वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है। एक्सप्रेस मतलब कि वो खुद अपना कैरेक्टर्स दिखा रहा है। तो उसने अपना कैरेक्टर क्या दिखाया? तो कि सारे प्लांट्स टॉल मिल गए। और कैपिटल टी की प्रेजेंस की वजह से जो स्मॉल टी है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, सो इट्स नोन एज स्मॉल, मतलब कि रिसेसिव कैरेक्टर। जो खुद को एक्सप्रेस करता है उसको हम डोमिनेंट जीन बोलते हैं। और डोमिनेंट जब तक प्रेजेंट है तब तक जो दूसरा जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो उसको हम रिसेसिव जीन्स बोलते हैं। And these two are the most important phenomena. So please listen carefully. First one, what is dominant gene and what is recessive gene? Dominant का मतलब क्या होता है? कि जो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है कब? जब दो डिफरेंट जीन्स या फिर दो डिफरेंट एलेल प्रेजेंट है, then the one gene or one allele express itself, but the another allele does not express itself in presence of one। मतलब कि जब दो डिफरेंट एलेल प्रेजेंट है तब एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो एक्सप्रेस होता है वो दूसरे के ऊपर डोमिनेंट कहलाता है। समझ में आ रहा है? हमारे पास एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी का कैरेक्टर हमें देखने को मिला, मीन्स टॉल कैरेक्टर देखने को मिला। तो जिसका कैरेक्टर हमें देखने को मिला वो डोमिनेंट है। किसके ऊपर डोमिनेंट हो गया? वो स्मॉल टी के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसने स्मॉल टी की इफेक्ट को एक्सप्रेस ही नहीं होने दिया। तो जब तक कैपिटल टी है तो वो स्मॉल टी की प्रेजेंस होने के बावजूद भी स्मॉल टी अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाएगा, और उसकी वजह से हमें जो सारे प्लांट्स है वो कैसे मिले? टॉल। स्मॉल टी ड्वार्फ कैरेक्टर वाला जीन है, फिर भी हमें कोई ड्वार्फ कैरेक्टर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी है, डोमिनेंट जीन है,
जब तक डोमिनेंट प्रेजेंट है तब तक रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कभी भी नहीं कर पाएगा. क्लियर? दैट इज डोमिनेंट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज रिसेसिव. हमेशा याद रखो, जो कैपिटल लेटर में लिखा होता है उसको डोमिनेंट जीन बोलते हैं एंड जो स्मॉल लेटर में लिखा होता है उसको हम रिसेसिव जीन बोलते हैं. जब तक डोमिनेंट है तब तक रिसेसिव अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. क्लियर? तो हियर व्हाट इज होमोजाइगस, व्हाट इज हेटेरोजाइगस, व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रिसेसिव. व्हाट इज होमोजाइगस? होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ? हैविंग टू सेम एलेल्स. Clear? That is homozygous. Hetero means there are two different alleles. One is capital, another is small. That is heterozygous condition. What is dominant and what is recessive? If two different alleles are present, then one express itself and another remains stable or unexpressed in presence of dominant. Clear? तो जो अपने आप को express कर रहा है, that's known as डोमिनेंट, एंड जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव जीन्स. क्लियर? ओके. नाउ सिंबल जो हमने दिया है ना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके हिसाब से मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कैसे समझ सकते हैं वो दिखा रहा है. First, Mendel crossed tall and dwarf plant. वही का वही एक्सपेरिमेंट्स है लेकिन सिंबल के थ्रू समझना है. हियर पेरेंट प्लांट्स में हमने टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट लिया है जिसका गैमेट्स है कैपिटल टी कैपिटल टी. हियर इज द स्मॉल टी consist of T type of gametes, consist of small t types of gametes. मतलब कि all gametes are T types, all gametes are small t type. Here the crossing between these two, there is the formation of F1 generation. In F1 generation, Mendel, so all plants were tall, having heterozygous condition. अभी पढ़ा है मैंने कि ये जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है? हेटेरोजाइगस होती है. Why tall? Because of presence of dominant gene. डोमिनेंट की वजह से कैरेक्टर कौन सा है? टॉल. और कंडीशन कौन सी बोल सकते हैं? हेटेरोजाइगस. Why? Because of presence of two different types of gametes. Clear? Now the self fertilization of F1 generation, capital T small t capital T small t, for getting the F2 generation. So here capital T small t, same way capital T small t. Okay. Now here the crossing between this capital T जो है उसके 50% पॉसिबिलिटी है कि वो कैपिटल टी, ये मेल है और ये फीमेल है, तो ये जो मेल है उसका जो पोलेन है उस पोलेन की 50% एफिनिटी है कि वो कैपिटल टी वाले ओवा के साथ बाइंड हो सकता है या फिर स्मॉल टी वाले ओवा के साथ बाइंड हो सकता है. तो हियर द फ्यूजन ऑफ कैपिटल टी फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन इज कैपिटल टी स्मॉल टी. सेम वे जो स्मॉल टी वाला पोलेन है उसकी भी दोनों के साथ 50-50% पॉसिबिलिटीज है कि अगर वो कैपिटल टी वाले ओवा के साथ फ्यूज कर सकता है या फिर स्मॉल टी वाले ओवा के साथ फ्यूज कर सकता है. तो हियर इज द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. क्लियर? ओके. नाउ द मेन इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो हमें F2 जनरेशन में क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. हियर different types of gametes were observed in F2 generation. Okay. Now both are capital T. So tall plant. Here one is capital T, another is small t. Means small t is dominant over the capital T is dominant over the small t.
मीन्स कैपिटल टी डोमिनेंट है, मतलब किसका कैरेक्टर रिप्रेजेंट होगा, कैपिटल टी का, और कैपिटल टी का कैरेक्टर कौन सा है, टॉल. ओके, तो दिस वन टॉल. सेम वे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी रिप्रेजेंट होगा, स्मॉल टी नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज कैपिटल टी इज डोमिनेंट. तो हियर कैपिटल टी इज टॉल and this one small t both are recessive in nature, so here dwarf. आगे ही बताया Mendel observed in F2 generation both characters tall and dwarf which resembles like their parents tall and dwarf. The proportion is 1 2 3 1 2 3 tall and one is dwarf. The proportion 3:1. Clear? Okay. लेकिन 3:1 proportion is phenotypic. दो टर्म है, सुनो. What is phenotype and what is genotype? Phenotypes means what? Pheno means characters which we can see with naked eyes. हमारी आइज के थ्रू हम जो भी कैरेक्टर्स देख सकते हैं, मतलब कि आप देख सकते हो कि ये टॉल है, ये प्लांट ड्वार्फ है. तो जो आप देख रहे हो, जो कैरेक्टर्स अपनी आइज के थ्रू आप देख रहे हो, उसके बेस पर जो भी आप रेशियो बनाते हो वो फिनोटाइपिक रेशियो कहा जाता है. मतलब कि यहाँ हमने लिखा कि कैपिटल टी है दैट इज टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी है दैट इज टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी है दैट इज टॉल, एंड स्मॉल टी दैट इज ड्वार्फ. मतलब कि हम ये नहीं देख सकते कि इसमें कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, वो नहीं देख सकते. लेकिन फिनोटाइपिक में हमने क्या किया, जो भी हमें हाइट में बड़े दिखे, मतलब जो भी टॉल थे वो काउंट कर लिए. तो कितने टॉल थे, 1 2 एंड 3, एंड जो ड्वार्फ था वो 1. तो अकॉर्डिंग टू दिस फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1. क्लियर? ओके. नाउ व्हाट इज जीनोटाइपिक रेशियो? नेम से ही पता चलेगा आपको. जीनोटाइपिक, जीनो मीन्स जीन्स, जिसके जीन्स सेम होते हैं, इसके अकॉर्डिंग रेशियो बनाया जाता है. जैसे कि ध्यान से देखो, यहाँ जीन है कैपिटल टी, नंबर इज 1 ही है जिसका जीन कैपिटल टी. ओके, तो 1 हियर, 1 इज कैपिटल टी, अनदर इज कैपिटल टी. हियर 1 इज कैपिटल टी, अनदर इज स्मॉल टी. तो ये कितने हो गए, 2. और स्मॉल टी दैट इज 1. तो हमने उसमें क्या देखा, कैरेक्टर्स नहीं ऑब्जर्व किए. क्या ऑब्जर्व किया हमने, जीन ऑब्जर्व किया. मतलब कि जीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होना चाहिए. मतलब कि कैपिटल टी वाले कितने हैं, तो 1 है. कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, तो 2 है, 1 एंड 2. एंड स्मॉल टी जीन्स जो है वो कितने हैं प्लांट, तो 1 ही है. तो अगर हमें जीनोटाइपिक रेशियो लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 1:2:1 कह सकते हैं. मतलब कि 1/4, 1/2, 1/4. परसेंटेज के हिसाब से देख रहे हो तो 25% कैपिटल टी, देन 50% कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड 25% स्मॉल टी. अगर ऊपर लिखना है तो क्या लिखोगे, सेम वे 3/4 एंड 1/4. परसेंटेज के अकॉर्डिंग लिखना है तो फिनोटाइपिक में 75% were tall and 25% were dwarf. Clear? How to find out the genotypic and phenotypic ratio? In phenotypic ratio or for phenotypic ratio we consider only the characters which we can observe through our naked eyes.
मतलब जो हम हमारी आईज के थ्रू जो देख सकते हैं कैरेक्टर्स को कि हाँ भाई ये टॉल है या हाँ ये ड्वार्फ है, ये पिंक कलर का है, ये रेड कलर का है, ये वायोलेट है, ये वाइट है, या फिर ये राउंड सीड है, ये रिंकल्ड सीड है। तो जो हम देख सकते हैं कैरेक्टर्स को उसके हिसाब से काउंट करना है, क्योंकि रिंकल्ड सीड कितने हैं 1 2 3, राउंड सीड कितने हैं 1 2 3। समझ में आ रहा है? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि टॉल कितने हैं 1 2 3 एंड ड्वार्फ कितना है 1। तो उसके हिसाब से फिनोटाइपिक रेशियो में कौन सा लिखा 3:1। ओके, एंड जीनोटाइप मतलब क्या, हाउ टू फाइंड आउट जीनोटाइपिक रेशियो। तो जस्ट कंसिडर ओनली जीन्स, मतलब कि जो जीन्स के सेम कैरेक्टर्स होते हैं उसको कंसिडर करना है, नॉट कैरेक्टर्स, जो सेम जीन्स होते हैं उसको कंसिडर करना है। मतलब कि सेम जीन्स कैपिटल टी कंटेनिंग जो जीन्स है वो कितने हैं, एक ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो कितने, दो है, 1 and 2, एंड स्मॉल टी जो जीन है जिसमें वो कितने प्लांट है, तो ओनली 1। तो उसके हिसाब से रेशियो कौन सा बन जाएगा 1:2:1। मतलब कि जो टोटल 4 है तो 4 में से 1 कौन है, कैपिटल टी, देन 1/2 मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है 1/4। क्लियर? उसके हिसाब से आप देख ही सकते हो कि 25% जो है वो क्या है, कैपिटल टी, 50% है कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड 25% है स्मॉल टी। क्लियर? और फिनोटाइपिक में 3 टॉल 1 ड्वार्फ, मतलब कि 3 मतलब कि 75% टॉल है एंड 25% ड्वार्फ है। क्लियर? तो इट्स ऑल अबाउट द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। क्लियर? समझ में आ रहा है? आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाले ये 6 पॉइंट्स है। व्हाट इज होमोजाइगस कंडीशन, व्हाट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन, व्हाट इज डोमिनेंट जीन, व्हाट इज रिसेसिव जीन, what is phenotypic ratio and what is genotypic ratio. Let's revise. First one, what is homozygous condition. Homozygous means having same alleles in pair, that is known as homozygous. For example, capital T, small t. What is heterozygous condition, having different alleles in pair, that is one is capital T and another is small t. What is dominant and what is recessive. So when two different alleles of genes are present, then one express itself and another remain stable in presence of one. मतलब कि जो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है is known as dominant gene and जो नहीं कर रहा है उसको रिसेसिव बोलते हैं। डोमिनेंट ऑलवेज डिनोट्स इन फॉर्म ऑफ कैपिटल लेटर एंड रिसेसिव ऑलवेज डिनोट्स इन फॉर्म ऑफ स्मॉल लेटर। जब तक डोमिनेंट होता है तब तक रिसेसिव अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, मतलब कि वो जीन प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाएगा। क्लियर? एंड लास्ट वन, व्हाट इज फेनोटाइपिक एंड व्हाट इज जीनोटाइपिक। फेनोटाइप मतलब कि जो हम अपनी आईज के थ्रू देख सकते हैं, जो भी कैरेक्टर्स, द कैरेक्टर्स विच वी ऑब्जर्व थ्रू अवर नेक्ड आई, दैट्स नोन एज फेनोटाइपिक रेशियो, or that is known as phenotype, and from the phenotype we find out the phenotypic ratio, मतलब कितने टॉल है एंड कितने ड्वार्फ है। कैरेक्टर के हिसाब से जो रेशियो फाइंड आउट होता है दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो, एंड जीन के हिसाब से जो रेशियो फाइंड आउट होता है दैट इज जीनोटाइपिक। मतलब सेम जीन वाले कितने हैं वो काउंट करने हैं, मतलब कैपिटल टी वाले कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, एंड स्मॉल टी वाले कितने हैं। ओके, क्लियर? आज यहाँ तक ही। कल हम स्टार्ट करेंगे प्यूनेट स्क्वायर मेथड फॉर मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। आज जो भी पढ़ा है वो खुद अपने आप एक बार पढ़ लेना, फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट या फिर कॉल करके पूछ सकते हो। ओके।